Hello students, how are you all? Today we will be taking start of our new chapter, that is chapter number 21, inheritance. Now, what is first of all genetics? When we study the inheritance, we will study about the genes, we will study about the heredity and variation, right? The branch of biology that deals with the study of heredity and variation is actually the genetics. Now, in this chapter, we will study about the Mendelian principles. We will study the law of segregation and the law of independent assortment, right? This chapter is very important as they usually frame as a question that write a note or explain the Mendelian inheritance या आपको दे दिया जाएगा टू ट्रेड्स दे दी जाएंगी या डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया जाएगा या मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया जाएगा in the previous batch they gave them actually they gave them the monohybrid cross, okay. So there is a difference between these two crosses, and we will inshallah study in the detail that what is monohybrid cross and what is dihybrid cross and what is monohybrid and dihybrid traits, right? First of all, actually inheritance is the basically the capacity of an organism to reproduce. ये organism की capacity है कि वो reproduce करे, और आपके पास reproduction के बाद आ जाता है टॉपिक inheritance का, जिसमें transmission of characters हैं. Actually we inherit the characters from our parents. Either it is the eye color, or it is a height or hair color, or it is the writing pattern, or maybe it is the intelligence, right? So all these characters are transmitting from the parents to the offsprings. Now, what are the major things which are transmitting these characters? Actually, these are the genes. The genes are transmitting, they are the main bodies which are transmitting one specific character from one offspring to the other, from one person to the other, from your parent to the other, from one generation to the other, right? Now, as we know that in case of genetics, genes play a very major role, and gene is actually a sequence, or it is a small coding part which is present on the chromosome. Now, where is chromosome? Actually the chromosome is present inside the nucleus, right? We have DNA, and DNA actually आपके पास क्या है? Deoxyribonucleic acid. So we have the chromosomes which are the genetic, which contains the genetic informations in the form of the genes, that is the coding part, right? Now when we will discuss about the genetics, we cannot ignore the importance of heredity and variation. Actually the heredity is, it is the term which is basically close to the inheritance topic. The tendency of the individual to resemble to their parents. Actually heredity is the tendency of an organism to resemble to their parents. Like the animals, for example the monkey जो है रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट के साथ, ह्यूमन मैमल रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट के साथ. सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिजेंबल इट्स his or her parent, okay. It is actually the tendency. Heredity is actually the process, it is the process of resembling their parents
right? If the heredity is not present, or if there is no transmission of characters, now maybe उनकी नस्ल जो है वो स्टॉप हो जाए, मे बी वो स्पेसिफिक करेक्टर स्टॉप हो जाए, ठीक है। सो आपके पास रिप्रोडक्शन जहां इंपॉर्टेंस रखती है, वहां जीन्स की ट्रांसमिशन भी इंपॉर्टेंस रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा और जब हमने जाइगोट की डिवीजन को देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइटोटिक डिवीजन में देखा कि जब वो ब्लास्टूला डिवाइड हो रहा था, उससे पहले जब जाइगोट बन रहा था, तो उसने एक जो है वो अपने पेरेंट, अपने मैटरनल फादर से और एक मदर से जीन ली थी, राइट। वन शुड बी फ्रॉम द मेल parent and other should be from the female parent, so that there is equal distribution of genes. We will get the single part from our male parent and other from our female parent. So it is important that each and every genetic information must be transferred to the zygote, so that the zygote must resemble to the, either it is a male zygote mammal, sorry, either it is a zygote which belongs to the mammals, or either it is a zygote which belongs to the chick. So chick का जो आपके पास डेवलपमेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स या अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। समझ रहे हैं ना बात को। नाउ वेरिएशंस। नाउ जैसे कि हम डिस्कशन करते हैं कि वी आर the copies of our parents, but we are not the exact copies. We are not the exactly the same. There are few variations which are present between the organisms. Even the identical twins में variations उनकी fingerprinting में आ जाती है। 99% अगर डीएनए सेम होगा तो 1% जो है वो डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रिमिनल बेसिस भी अगर हम देखें, तो वहां पर अगर ट्विंस हैं तो उनकी फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, डीएनए एनालिसिस की जाती है, सो दैट कि आपके पास जो मेन कल्प्रिट है उसको ही जो है ना सजा मिले, right? So there are variations which are present in the offsprings, and there are variations in us, so that we have a specific identity, कि हमारी अपनी एक identity हो, right? Now what is genotype? Before starting this chapter, these terminologies are very important, so that it is easy for you to understand what is genotype, what is phenotype, what is homozygosity, what is heterozygosity, what is test cross. It is very important for you to know these terminologies. So before going into the detail, we must have to know that what is genotype, what is phenotype, what is recessive, what is dominant, right? So genotype is actually the genetic makeup of a character. For example, if there is a yellow plant, if there is a plant with a yellow flowers, and if there is another plant with green, सो आपके पास ये जो मैं इसकी अपेयरेंस बता रही हूँ, ये मैं इसकी फिजिकल अपेयरेंस बता रही हूँ, जो मैं देख के जान सकती हूँ कि जी ये कलर जो है वो येलो है और ये कलर जो है वो ग्रीन है। लेकिन जब मैं इसकी जेनेटिक्स को स्टडी करूंगी, इसकी जीन्स को स्टडी करूंगी, क्रॉस करवाऊंगी, और जब मैं इनके जीन्स को स्टडी करके और मैं इनके कलर को आपको बताऊंगी, तो ये इसका क्या होगा, इसका ये जेनेटिक मेकअप होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल येलो डोमिनेंट है और ग्रीन वाई जो है वो रिसेसिव है, ठीक। तो इसमें जो है वो येलो डोमिनेंट होगा, तो कलर जो है वो फ्लावर का क्या आएगा, येलो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल अपीयरेंस तो उसकी येलो थी, लेकिन अगर मैं जेनेटिक बेसिस पे पढ़ूंगी या मैं जीनोटाइप उसकी पढ़ूंगी, तो मैं कहूंगी कि जी ये कैपिटल वाई है, दैट इज वाई इसमें येलो कलर डोमिनेट हुआ है, राइट। physical appearance, phenotype. Phenotype is actually the expression कि आपके पास ये जो करेक्टर की डेवलपमेंट हुई है फिजिकली,
Either a person is tall or a plant is tall or short. That is the physical appearance. Example. Now we will understand this concept on the basis of the example, and this example is taken from the ब्लड ग्रुप सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ब्लड ग्रुप ए इज अ phenotype एंड इट्स जीनोटाइप इज आई ए. आपके पास हम जब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि आपके पास ब्लड ग्रुप को फॉर एग्जाम्पल आपके आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन है वो ए है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा. अगर आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा. ठीक हो गया. तो इस तरह से मैं कहूंगी कि आई जो है ये वो जीन है जो कि आपके ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लड की टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक हो गया. तो ये जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट होती है. ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि द जीन which is responsible for the blood group system that is present on which chromosome, that is present on chromosome number 9. Okay. अच्छा. नेक्स्ट, एलील. एलील में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअली इफ वी हैव, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास वाइट फ्लावर है और एक येलो फ्लावर है. ठीक हो गया. डब्ल्यू वाइट से मैंने कहा कि डोमिनेंट है और येलो फ्लावर को मैंने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये दो जीन तो है लेकिन इसमें टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स हैं. नंबर 1, एक है कैपिटल, एक है स्मॉल. W, कैपिटल W को भी मैं एलील कह सकती हूँ, स्मॉल w को भी मैं एलील कह सकती हूँ. लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि ये एक पेयर ऑफ जीन है. ठीक है. सो आपके पास ये जो एलील है, इट इज एक्चुअली द alternate form of gene. It is the alternate form of gene. In each individual, a pair of gene is found for a trait. And this trait, one from the mother and other from the father. And the pair of gene is called the allele. So आपके पास इस पेयर को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एलील है. Now here comes the example. आपके पास ये एक करेक्टर शो किया गया है, ब्लड ग्रुप सिस्टम से लिया गया है. One is coming from the male partner, other is coming from the female, and when we will get the IA and IA allele. So it is actually the example of allele showing the blood group system in which IA representing the gene in which the person's blood is A, blood type A. Okay. Homozygous. Now, what is homozygosity? Yeah, homozygous. When sometimes both the alleles are identical in an individual, so such individual with will call the homozygous for that allele. Let's say for example, अगर जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ब्लड टाइप की एग्जांपल ले रही हूँ, ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल ले रही हूँ तो ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है. नो, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर स्फेरिकल सीड शेप में स्फेरिकल मैं डोमिनेंट ले लूं और रिंकल को मैं रिसेसिव ले लूं. तो जब आपके पास ये स्फेरिकल है जिसको मैंने सीड शेप से रिप्रेजेंट किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको एस कंसिडर कर लेती हूँ, तो कैपिटल एस जो है वो डोमिनेंट को शो कर रहा है, स्मॉल जो है वो रिसेसिवनेस को शो कर रहा है. अब मैं कैपिटल एस और कैपिटल एस लिख दूं तो मैं कह रही हूं कि मैंने कौन सी कंडीशन शो की है, होमोजाइगस कंडीशन शो की है. या स्मॉल एस लिख दूं तो मैंने होमोजाइगस कंडीशन शो की है. राइट. नाउ दिस इज द हेट्रोजाइगस इन व्हिच देयर आर, इफ alleles आर डिफरेंट, मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे दूं येलो सीड कलर की. सो येलो सीड कलर जो है, इसमें येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है. राइट. अब हेट्रोजाइगस ये तब होगा जब मैं कैपिटल वाई
स्मॉल वाई ले लूं, दैट इज हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर मैं कैपिटल वाई ले रही हूं तो दैट इज होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। सो होमोजाइगस डोमिनेंट वही आ जाता है कि आपके पास आप अपनी डोमिनेंट करेक्टर को सेम शो करें, राइट। यहाँ अगर मैं आपको लिख दूं होमोजाइगस रिसेसिव, तो फिर मैं लिखूंगी स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? Homozygous recessive, देखें, homozygous recessive, if both the alleles are identical and are recessive, so such condition will be called as homozygous recessive. Important terminologies, these are the few important terminologies which are used in the inheritance topic, and as well as it is important in the chromosome and DNA chapters. So it is important for you to understand that what is gene. A gene is a small part of DNA having specific sequence of nucleotides, that is the part of the gene. अब आपके पास जीन वो स्मॉल फ्रेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए का जो कि क्या बनाएगा, एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनाएगा. Now what is structural gene? Gene which have code for protein and give rise to messenger RNA, that is the structural gene. Important part of gene, ठीक है. Exon, कोडिंग रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल एक्सॉन इज एक्चुअली द कोडिंग रीजन. बीच बीच में आपके पास कोडिंग रीजन्स आएंगे और इनके बीच आपके पास नॉन कोडिंग रीजन्स आएंगे. तो आपके डीएनए में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कोडिंग पार्ट्स हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं. So these terminologies are important for you. Character. What is character? Let's say for example here I am giving you the example of tall and a dwarf plant. आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप हाइट के बजाय आप कलर दे सकते हैं, फ्लावर कलर दे सकते हैं. ये भी एक करेक्टर है, ये भी एक ट्रेट है. इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स यानी करेक्टर्स. ट्रेड्स यही हैं कि आपके पास राउंड है कोई सीड तो कोई रिंकल है, कोई फ्लावर येलो है तो कोई फ्लावर जो है वो वाइट है. Allele. Actually, allele, it is the alternate form of gene. Here I am repeating this because of the example कि allele आपके पास जो है टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. एंड एलील जो है आपके पास होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है. हेयर आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके, नाउ व्हाट इज लोकस? एक्चुअली आपके पास जब भी आप जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये टर्मिनोलॉजीज बार बार रिपीट होती हैं. और अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर उतना जल्दी क्लियर नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू make a clear concept that what is locus, what is allele. Locus is a specific position जहां पर आपकी वो जीन प्रेजेंट होती है. The position of allele on homologous chromosome is called locus. This is the example of homologous chromosome, and this is an allele, this is an allele, and it is placed on a specific place. That is why it is called the locus. Now, Mendel's law of inheritance. Now, what is law of inheritance and what is actually Mendel is usually called the father of genetics, and Mendel was the pioneer of classical genetics. ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया था जेनेटिक्स में. Gregor Mendel, 1822 to 1884, was an Austrian monk and is popularly known as the father of genetics. So he did lots and lots of experiments on a pea plant. He selected the pea plant, and यहाँ पर आपके पास ये जो मेंडल की डिस्क्रिप्शन दी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दी थी इसमें उस वक़्त इनके वर्क को या इनके काम को या इतने एक्सपेरिमेंट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था. रीज़न ये थी कि आपके पास उस एरा में डार्विन थ्योरी आई थी एवोल्यूशन की.
सो जिस वजह से मेंडल का जो वर्क था वो निग्लेक्ट किया जा रहा था, राइट? The science of genetics originated in the year of 1900 with the rediscovery of an article published in 1866 by Augustine monk named Gregor John Mendel. So he was the father of genetics and आपके पास इन्होंने जो पी प्लांट पे काम किया था वो एक्चुअली इस तरह से था कि इस वजह से ये पी प्लांट सिलेक्ट किया गया कि एक तो ये पी प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना इजी था, इसके अलावा इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट थी, और इट इज द प्लांट विच हैज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, ठीक। और मेंडल ने इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो थे वो सिलेक्ट किए थे, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है कि आप इन डेट्स को याद रखें, मेंडल की वर्क की और मेंडल की डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मोनेस्ट्री मतलब ये एक ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ उनके लिए गार्डन करीब था, और ये था कि इनके लिए पी प्लांट को ग्रो करना और पी प्लांट को इजीली ग्रो करना और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर्स को स्टडी करना पॉसिबल था, और इस वजह से सिलेक्शन इन्होंने की कि पी प्लांट जो है एक तो इजीली इसको इस पे सर्च की जा सकती थी और इजीली इस पे जो है वो करेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता था, यानी ये इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था, ठीक। एक्चुअली बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अगर अब ग्रो किए जाएं तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए पी प्लांट पाइसम सेटिवम को, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है, गार्डन पी, इसको मेंडल ने स्टडी किया, ठीक। अब this is the actually the reasons for why he select the pea plant and why he did experiments on pea plant. These are the 7 contrasting characters which are present in the garden pea plant Pisum sativum, and he observed, the Mendel observed the various characters. All right. Now, the first character is seed shape. Seed shape, the dominant character for the seed shape is round, and the dominant character, recessive character for the seed is wrinkle. The round is dominant and the wrinkle is recessive. Seed color. The color may be yellow or it may be green, depending कि आपके पास dominant character है या recessive. सीड कोट कलर्ड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। फ्लावर कलर, पॉट शेप आपके पास इन्फ्लेटेड भी हो सकती है और कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, ठीक हो गया। here they haven't mentioned the flower color, that is the purple one is dominant, the white is the recessive one, okay. the pot color is the pot color is green for the dominant and the yellow is for the recessive character. Now, when the flower is at the axial position, then it is the dominant type. When it is at the terminal position, at the top, at the tip, that is called the recessive character. So, axial character is dominant character and terminal is the recessive character. Stem length, हम कह सकते हैं अगर ये लॉन्ग है, टॉल है, दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर, एंड ड्वार्फ और शॉर्ट,
is the recessive character. Okay. Now, what is law of dominance? According to the law of dominance, different characters are controlled by units called factors. एक्चुअली जब मेंडल ने जेनेटिक्स को स्टडी किया तो वहां उन्होंने टर्मिनोलॉजी जीन्स की यूज नहीं की कि आपके पास येलो फ्लावर था या येलो सीड था तो आपके पास ये येलो कलर जीन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि मेंडल ने फैक्टर्स कहा था। जीन्स का जो स्पेसिफिक नेम उन्होंने यूज किया, फैक्टर्स का यूज किया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि येलो कलर लाने में या ग्रीन कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया था। फैक्टर्स अकर इन पेयर, ऑफ अ पेयर वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। अब मेंडल ने कहा कि ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स में से एक पार्ट जो है वो रिसेसिव है और एक पार्ट जो है वो डोमिनेंट है, यानी एक पार्ट डोमिनेट करेगा दूसरे की ऊपर। नाउ व्हाट इज सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन: when two different traits of a character are brought together in a same cross, they stay together, but at the time of formation of gametes these alleles are segregated from each other, so each gamete has its own allele, not the both. ये सेग्रीगेशन की आपके पास आ जाती है टू डिफरेंट कह सकते हैं आप डेफिनेशंस, आपकी मर्जी, आप जो भी मेंशन करें। अब यहाँ पर देखिए, ये येलो था सीड, ठीक हो गया, सीड कलर हम यहाँ पर ले रहे हैं, करेक्टर हमने क्या लिया है? सीड कलर। आपने अपने पाई चार्ट बनाना है, आपने अपना ये फ्लो चार्ट बनाना है, आप बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं। आप अपने करेक्टर्स बनाना चाहते हैं, आप अपने करेक्टर्स बना सकते हैं। आप यहाँ पर स्फेरिकल और रिंकल भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ गुड कि आप जो है ना वो येलो एंड ग्रीन से स्टार्ट लें, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए इसी को ही फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने येलो सीड ले लिया, येलो सीड, ठीक हो गया, येलो सीड कलर ले लिया कि मैंने कहा मेरा ये जो सीड कलर का प्लांट है या जो ये प्लांट है इसका जो सीड कलर है वो येलो है। फिर इसमें ये जो येलो है ये डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक हो गया। अब मैं इनके क्या बना लूंगी? गैमीट्स बना लूंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको मिस नहीं करना, गैमीट्स बना लेना है। एक सीड का भी एक गैमीट ले लें, एक, यानी आपने इसके ये कैपिटल वाई एक अलील, ये दूसरी अलील, ये जो अलील है इसमें से आपने एक अलील ले लेनी है, गैम्यूट्स बना लेने हैं। गैम्यूट्स बनाने के बाद ये जब क्या बना देगा आपके पास? F1 जनरेशन बना देगा। तो F1 जनरेशन में ये दोनों जो हैं मिलेंगे, लेकिन कभी भी ये अलील्स जो हैं जब हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट सेपरेट करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेपरेशन के दौरान ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई एक ही गैमीट के अंदर चले जाएं, ठीक हो गया। ये सेपरेटली सेग्रीगेट करेंगे। सो यही आपका लॉ भी कह रहा है कि व्हेन टू डिफरेंट ट्रेड्स, जैसे कि हमने येलो और ग्रीन ले ली, येलो ट्रेड और कौन सी ट्रेड? ग्रीन ट्रेड, जो कि हमने कहा कि वो सीड कलर येलो एंड ग्रीन है। जब भी मैं इनको ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, दे स्टे टुगेदर, बट जब आपके पास गैमीट की फॉर्मेशन आती है तो ये एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और ये अलग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एलील्स जो हैं वो एक ही पेयर बना लेंगे, बल्कि ये क्या होंगे? At the time of the formation of gametes, one must be separated from the other or segregated from the other. That is very important. Law of segregation is very important according to the board point of view. Now in F2 generation, we will make a Punnett square. In this checkerboard, we will see that when we take the gametes and when we will draw the Punnett square, we will say that we will cross both these yellow, we will get the yellow characters, capital Y, small y, capital Y, small y, small y, small y. अब आपके पास y जो है जब तक आता रहेगा तो ये कंडीशन जो है वो डोमिनेंट होगी, क्योंकि
वाई तो डोमिनेंट है, तो हमारे पास कैसी रेशियो आ गई, 3:1 की रेशियो आ गई। ठीक हो गया। अब जब हम फिनोटाइप और जीनोटाइप को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये मेंशन करेंगे कि आपके पास फिनोटाइप येलो में अगर हम फिजिकली देखें तो वो येलो है, और अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और मैं जीनोटिपिकली अगर कहूँ तो एक बिल्कुल प्योर जो है वो 1 है, और बाकी हमारे पास ये जो दो हेट्रोजाइगस आए हैं ये 2 हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 3:1 की जो रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो है, लेकिन अगर मैं जीनोटिपिक इसको ऑब्जर्व करूंगी ना तो 1:2:1 करूंगी। ठीक हो गया। 1:2:1 करूंगी। 1 रेशियो, इन दोनों को मैं 2 कंसिडर कर रही हूँ, 1:2:1। ठीक हो गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। I hope the topic is clear. If there is any difficulty, you can ask from me, okay?